دیکھیں یہ جو خبر آپ بتا رہے ہیں کہ ایسی کوئی پٹیشن آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو فوجی تحویل میں نہ دیا جائے، اب جب تک اس کیس کی تفصیلات سامنے نہیں ہوں گی ٹو بی آنیسٹ بندہ اس کے اوپر کامنٹ تو نہیں کر سکتا۔ کیا یہ تحریک انصاف کی جانب سے پٹیشن آئی ہے؟ کیا جماعت کے اندر کوئی ایسے خدشات ہیں؟ لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ خان صاحب ان خدشات کا اظہار کر چکے ہیں، اور صحافیوں سے بات کرتے ہوئے خان صاحب نے اڈیالہ جیل کے اندر یہ کہا تھا کہ اب اگلا سٹیپ یہ کریں گے کہ یہ مجھے فوجی عدالت میں بھیج دیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں شاید اس کو پری ایمپٹ کرتے ہوئے کسی نے یہ پٹیشن کی ہے، لیکن جب یہ کیس آگے چلے گا، اس کے اندر جو چیزیں ہیں، کون لائرز ہیں، کس کی طرف آئی ہے، کیا خان صاحب خود اس میں پٹیشنر ہیں یا کوئی کنسرنڈ سٹیزن ہے، تو وہ ساری چیزیں جب کلیئر ہوں گی تو تب ہی معاملات جو ہے تھوڑے سے سامنے آئیں گے۔ دیکھیں جو فوجی ٹرائل کی آپ نے بات کی، میری ایک دفاعی تجزیہ کار سے بات ہو رہی تھی اور میں نے ایگزیکٹلی یہی کوشچن ان سے کیا تھا کہ وہاں پہ ٹرائل کتنا عرصہ چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ مہینوں والی بات نہیں ہے کہ 6 مہینے چلتا رہے گا، وہاں پہ ہفتوں کے اندر جو ہے چیزیں سموتھلی چلتی ہیں اور میکسیمم 1-2 مہینے کے اندر 3 مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جاتا ہے۔ پر ایٹ دا سیم ٹائم جو وہاں پہ ڈیفینڈنٹ ہے اس کو یہ رائٹ بھی دیا جائے گا کہ وہ اپنا دفاع کرے، لیکن وہ جو اس کی اوپننیس کے اوپر بہت بڑا کوسچن ہے کہ ایک ادارہ جس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سیولینز کا ٹرائل کرے، کیا وہاں پہ ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ بحث ہے جو اس وقت ملک کے اندر بھی چل رہی ہے۔ اور یہی بحث آپ نے دیکھا کہ پھر سپریم کورٹ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ اس وقت سپریم کورٹ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ فوجی عدالت میں مقدمہ چلا سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتے۔ تو اگر خان صاحب کا مقدمہ وہاں پہ جاتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ مقدمہ وہاں پہ کوئی بہت لمبا عرصہ چلے گا، لیکن مجھے یہ کوئی ممکنات میں سے اس وقت آج کی تاریخ میں یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب کا مقدمہ وہاں پہ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں کوئی ایسی سچویشن آ جائے پاکستان کی سیاست میں، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس وقت جو حکومت کی حالت ہے مجھے نہیں لگتا کہ اتنا جو ہے وہ حکومت دباؤ لے سکتی ہے عالمی سطح کے اوپر کہ وہ عمران خان صاحب جہاں پہ ایک طرف وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب لڑ رہے ہیں، پوری دنیا میں ان کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر اسی موقع کے اوپر ان کا مقدمہ فوجی عدالت میں بھیج دیا جائے تو یہ سسٹین کرنا پریشر حکومت کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ دیکھیں یہ جو خبر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب نے کوئی ایسا بل پیش کیا ہے کہ اسلام آباد میں بغیر اجازت کے اگر آپ جلسہ کریں گے، اسمبلی کریں گے، لوگوں کی پیسفل بھی بے شک اسمبلی ہو پر اس میں اجازت نہ ہو، تو 3 سال سے 10 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا یہ جمہوری سوچ کا مظہر ہے؟ کیا دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک کے اندر آپ لوگوں کو صرف جمع ہونے کے اوپر 10 سال قید کی سزا سنا سکتے ہیں؟ کیا ہم نے اس ملک کو تہیہ کر لیا کہ نارتھ کوریا بنانا ہے؟ ویسے بھی دیکھ لیں اس ملک کے اندر اگر دارالحکومت کا آپ جائزہ لیں تو دارالحکومت میں تو ہر وقت دفعہ 144 نافذ ہے۔ جب سے یہ لوگ آئے ہیں، PDM-1 کی حکومت آئی، نگران آئے، اور اس کے بعد اب دوبارہ شہباز شریف صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو آپ اسلام آباد میں نہ کسی کو جلسے کی اجازت ہے نہ جلوس کی اجازت ہے۔ ہاں یہ چیز ایک جماعت تک ضرور مخصوص ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب ایک کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں تو مذہبی جماعتوں کے لوگ آئے، ان کو کسی نے اس طرح روکا نہیں۔ اسی طرح جب مولانا فضل الرحمان صاحب کے حمایتی آئے تھے اور آپ نے دیکھا تھا کہ وہ ریڈ زون کے اندر داخل ہوئے، سپریم کورٹ کے سامنے کنٹینر لگا، جس وقت عطا بندیال صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس تھے، وہاں پہ عدلیہ مخالف تقاریر بھی ہوئیں، ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں۔ تو میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ عرفان صدیقی صاحب اس بل کے اندر لکھ دیں کہ تحریک انصاف والوں کو 3 سے 10 سال سزا ہوگی اور باقی جو جماعتیں ہیں وہ اس سے ان کو استثناء حاصل ہو۔ دیکھیں یہ جو رابطے ہیں نون لیگ کے اور وہ جو تحفظ آئین کے تحفظ کی جو ایک موومنٹ ہے، وہ جس کو اچکزئی صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے بھی ان کو نامزد کیا ہوا ہے، یہ رابطے تقریباً 2-3 مہینے سے چل رہے ہیں۔ یہ اچکزئی صاحب نے کچھ صحافیوں سے ملاقات کی تھی اور اس میں وہ بار بار اس چیز کے اوپر ایڈمنٹ تھے، انہوں نے زور دیا کہ اگر ہم نے جمہوریت کو آگے لے کے چلنا ہے تو ساری سیاسی جماعتوں کو رابطہ کرنا پڑے گا اور نواز شریف صاحب کو بھی اس میں اہم کردار ادا کرنا پڑے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نواز شریف میری بات مانتے ہیں اور میں ان کو راضی کر لوں گا۔ تو یہ جو رابطے ہیں یہ تقریباً 3 مہینے سے ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ اب کچھ چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں، کیا اس کے اندر پاورفل سرکلز کی بھی کوئی
मंशा शामिल है उसके हवाले से मुझे नहीं पता, पर मुझे नहीं लगता कि उनकी मंशा शामिल नहीं होगी। अगर आप देखें तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी जो पैगाम बार बार आता है वो यही आता है कि जो सियासी जमातें वो आपस में बात करें, और तहरीक इंसाफ ये कहती है कि इन लोगों के साथ हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये खटपुतलियां हैं, इनको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, इनकी हुकूमत लेजिटिमेट नहीं है, हम सिर्फ उनसे बात करेंगे जो इनको लेके आए। ये वो बयानिया है जो आपके बिलावल साहब का होता था, हमजा साहब का होता था, मरियम का होता था, शहबाज शरीफ साहब का होता था, इमरान खान साहब के हवाले से कि जी इमरान खान से तो बात नहीं करनी, उसका तो फायदा नहीं है, जो इनको लेके आए हैं हमने उनसे बात करनी है। और यही चीज़ अब जो है वो तहरीक इंसाफ वाले भी कहते हैं, लेकिन ये राब्ते हो रहे हैं और अचकज़ई साहब के राब्ते हैं, आज से नहीं 2-3 महीने से ये राब्तों का सिलसिला शुरू हो चुका है। फ़ायदेमंद मुज़ाकरात होंगे। इन मुज़ाकरात का कामयाबी का मतलब है कि नून लीग घर जाएगी, हल्के खुलेंगे और सारी हुकूमत की जो इस वक्त लीड है वो पूरी ख़तरे में पड़ जाएगी। तो हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं ये उनको भी पता है कि हमारे पास क्या मैंडेट है। एक हुकूमती शख्सियत ने, मैं ये बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि यार हमारे तो पंजाब के अंदर लोग पोस्टर फाड़ देते थे और हमें पता है कि हम किस तरह ये इंतखाबात जीते हैं। और उनके कुछ लीडरान बरमला इस चीज़ का टीवी पे भी इजहार कर चुके हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जिस किस्म की बातें करते हैं, तो इस जमात को पूरा इदराक है कि इलेक्शंस के अंदर हमारी हालत बड़ी पतली थी, जो पतन की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो हल्के खुल रहे हैं, जहाँ पे ऑडिट हो रहा है, वो भी सब कुछ सामने है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। हाँ, मेरे ख्याल में हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब की ये सोच हो कि आगे का जो सिनारियो बनना है, अगर इनके ऊपर से दस्ते शफकत उठा लिया गया तो इनके पास तो इस वक्त कोई अवामी सपोर्ट नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सस्टेन किया है इस रिप्रेशन को, इस जिस जबर को, जिस तरह का माहौल रहा है, हमने अपनी ज़िंदगियों में किसी भी सियासी जमात के ख़िलाफ़ इस तरह का माहौल नहीं देखा। हो सकता है माशाल्लाह के किसी दौर में 80s में या कहीं पे 60s में कभी हुआ हो, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगियों में इस किस्म के हालात नहीं देखे किसी भी सियासी जमात के हवाले से। ना कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त है, ना किसी को मिलने की इजाज़त है, ना जलसे जुलूस की इजाज़त है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। जब भी किसी जमात के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ है वो जमात सुकड़ के चंद सीटों की जमात बन गई। और यही वजह है कि बड़े बड़े दानिश्वर टीवी पे बैठ के कहते थे 10 सीटें, 12 सीटें, 15 सीटें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ होती है बंद कमरों की सियासत और बंद कमरों की सहाफत, वो दहाइयों से चली आ रही है। वही जो सियासतदान है वो बंद कमरों में बैठते हैं, 4 सीटें उसको दे देंगे, 5 सीटें उसको दे देंगे, और वही जो पावरफुल सियासतदान हैं वो हमारे 15-20 दानिश्वरों से मिलते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको बताते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं, और वो दानिश्वर टीवी पे बैठ के कॉलम्स में लिखना शुरू हो जाते हैं कि जनाब फलाना फार्मूला आ रहा है, अब ये होगा, 15 सीटें मिलेंगी, 14 सीटें मिलेंगी, लेकिन वो अवामी पल्स को नहीं नोट करते। तो ये जो बंद कमरों की सियासत और सहाफत का कंप्लीट फेलियर हमने देखा है इन इलेक्शंस में, जो 8 फरवरी के इलेक्शंस थे। और तमाम तर जबर के बावजूद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त भी मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। तो मुझे यही लगता है कि ये जो मामलात हैं सारे ये इसी तरह चलते रहेंगे। फिलहाल इस बातचीत के नतीजे में मुझे कोई ब्रेक थ्रू होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, मौलाना साहब भी देख रहे हैं, मौलाना साहब को भी पता है कि अवामी मूड क्या है। अगर उन्होंने अपनी सियासत को बचाना है तो उनको कुछ चीज़ों के ऊपर उस सेंटीमेंट को भी कैटर करना है जो अवाम के अंदर इस वक्त पाया जाता है। बलूचिस्तान से लेके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध में, हर जगह पे आपको एक एंटी हुकूमत सेंटीमेंट नज़र आता है। दूसरी बात यह है कि मौलाना का इशू ये है कि मौलाना का जो आप जिसे कहते हैं वोटर बेस है वो खैबर पख्तूनख्वा है, वो अपना हल्का हार चुके हैं। अगर मौलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुकात ज़्यादा ख़राब करते हैं तो ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि अली अमीन जो है वो नाराज़ी का इजहार कर चुके हैं मुतअद्दिद बार। वो ये कहते हैं कि मौलाना के बहुत सारे जो मामलात हैं, इनके आगे पीछे जो लोग हैं उनके जो मामलात हैं, माली मामलात हैं, ज़मीनों के मामलात हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि मौलाना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत हो रही है, इस वजह से अली अमीन साहब को उस तरह फ्री हैंड नहीं दिया गया पार्टी क़यादत की जानिब से। तो आपने वैसे भी देखा होगा कि अली अमीन मुतअद्दिद मौक़ों के ऊपर मौलाना के हवाले से बड़े सख्त बयान दे चुके हैं। तो मौलाना को पता है कि कैश 22 सिचुएशन है, अगर तहरीक इंसाफ से बिल्कुल हालात ख़राब कर लिए तो अली अमीन जो है वो तो तैयार बैठा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, उसने क्या करना है। और दूसरा ये भी है कि बिल्कुल सारी आवाम को भी अपने खिलाफ कर दिया तो वो भी मसाइल का हल नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने हुकूमत के जो मामलात हैं उनको भी देखना है, हुकूमत से भी उनके राब्ते हैं। तो मुझे मौलाना कोई डेफिनेट साइड लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, ना ही मुझे मौलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सड़कों पे नज़र आ रहे हैं, ना ही मुझे
मुस्तकबिल करीब के अंदर मौलाना की मैं ज़ात की बात कर रहा हूँ कि वो हुकूमती बेंचों पे मुझे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ उनका कोई कैटर कर दिया जाए, हुकूमत उनको उनके लोगों को कुछ ओहदे दे दे या फिर कोई सेनेटरशिप वगैरह मामला हो जाए, लेकिन उसके अलावा मुझे मौलाना इस वक्त खुद काबीना में आते हुए या हुकूमत का हिस्सा बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। देखिए जी, जो 8 सितंबर का जलसा है इसमें तो कोई दो राय नहीं कि तहरीक इंसाफ का जलसा अगर आपने रहीम यार खान में करना है तो वहाँ पे भी वो बड़ा जलसा कर सकते हैं। इवन कि हमने देखा कि कच्चे के डाकू जो आजकल व्लॉग्स बना रहे हैं, आजकल दो ही व्लॉग मशहूर हैं जिस पे ज़्यादा तनकीद होती है, एक आज़ाद मीडिया वालों के और दूसरे कच्चे के डाकुओं के। वो भी उधर से तर्जीह दे रहे हैं कि जनाब पीटीआई का जलसा बहुत बड़ा होता है, ये उनका एक डाकू है, वो सीनियर तजियाकार भी साथ लिखता है, शायद लोन सीनियर डाकू सीनियर तजियाकार। उसने बाकायदा ये व्लॉग में बताया कि जनाब तहरीक इंसाफ के जलसे बड़े होते हैं। तो देखें, ये अवामी पल्स है, पूरे पाकिस्तान में लोगों को पता है कि जनाब की कौन सी जमात इस वक्त मकबूल है, तो तहरीक इंसाफ जिधर भी जलसा करेगी उसके लिए इशू नहीं। हाँ, जो दूसरा आपने क्वेश्चन किया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है कि हुकूमत का रद्द अमल क्या होगा। लेकिन जहाँ पे आपकी सोच ये हो कि आप जलसे जुलूस के ऊपर 10 साल कैद की बातें कर रहे हों, तो ऐसी सोच के अंदर तो फिर वही नतीजा निकलेगा कि आप लोगों को पकड़ दकड़ करेंगे, लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे ये लगता है कि 8 सितंबर का जलसा किसी ना किसी सूरत में हो जाएगा। क्या ये फुल फ्लैज जलसा होगा, वो उसके ऊपर अभी मुझे भी शक है। देखिए, पाकिस्तान में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कब चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन कुछ तब्दीलियां ऐसी हो रही। देखिए, अभी अगर आप मामलात को देखें, हुकूमत को किस चीज़ की फ़िक्र है। अगर आप हुकूमती वज़रा के बयानात को सुने, वो कहते हैं जी अक्टूबर में कोई तब्दीली हुई तो इन्होंने इलेक्शन पे अटैक करना है। भाई इलेक्शन पे क्या अटैक करना है इन्होंने? क्या इलेक्शन के ऊपर कोई अमेरिकन सुंडी छोड़ देनी है? किस किस्म का अटैक करना है? क्या अटैक? यही है कि हल्के खुल जाएंगे। अभी तक ये जो इलेक्शंस का सारा मामला है, ट्रिब्यूनल्स को नहीं चलने दिया जा रहा। पंजाब के अंदर ट्रिब्यूनल्स रुके हुए हैं, वफाक के अंदर ट्रिब्यूनल्स रुके हुए हैं। तो अगर ये ट्रिब्यूनल्स अपना काम करते हैं तो फिर तो पतन की जो रिपोर्ट आई है मुख्तलिफ हल्कों के हवाले से, और जो इलेक्शन कमीशन के अपने वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 47 फॉर्म 45 मौजूद हैं, वहाँ पे बहुत सारी आपको तजादात नज़र आते हैं। उनके अंदर आपको लगता है कि फिगर्स के अंदर रद्दो बदल किया गया है मुबैना तौर पे। तो ये सारी चीज़ें आगे चलती हैं तो हुकूमत के लिए ख़तरा हो सकता है। और उसके साथ साथ हुकूमत के लिए जो मेन इशू है कि हुकूमत को उस तरह आपको अवामी सपोर्ट नहीं नज़र आती है। हुकूमत के लिए जो बोझ आपका उठाता है वो आपका सियासी कैपिटल जो है आपकी हुकूमत का बोझ उठाता है। इमरान खान साहब के खिलाफ 3 साल इन लोगों ने मसलसल कोशिश की कि ये कोई बयानिया बना लें। सारी सियासी जमातें इकट्ठी थीं, लेकिन ये जो है एक बड़ा जलसा नहीं कर सके। इमरान खान साहब ने इनको लॉन्ग मार्च भी करने की इजाज़त दी, महंगाई मार्च करने की भी इजाज़त दी, धरना देने की भी इजाज़त दी, लेकिन ये कुछ नहीं कर सके। वजह क्या थी? वजह ये थी कि इमरान खान साहब की जो किसी हद तक पॉपुलैरिटी थी। इनका इशू ये है कि इनकी इस वक्त अवाम के अंदर किसी किस्म की कोई पॉपुलैरिटी हमें नज़र नहीं आती। इनका बोझ बहुत सारे आगे पीछे लोगों ने उठाया हुआ है। अब उनके कंधे कब तक ये बर्दाश्त कर सकेंगे, ये फिर डिपेंड करता है। देखिए, ये जो है क्वेश्चन जजेस के हवाले से, जो नए जजेस लाने की बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है। एक इसमें ये राय है जो बहुत सारे लोग तजियाकार भी ये कहते हैं, कानूनी माहिरीन ये कहते हैं, बरमला टीवी पे बैठ के ये कहते हैं कि जनाब वो जो सुप्रीम कोर्ट की मेकिंग है उसमें वो जो एक थिंकिंग के लोग हैं उनकी बर्तरी है, दूसरे इस वक्त अकलियत में हैं जो काजी फाइज ईसा साहब का बेंच आप कह सकते हैं या उनकी सोच रखने वाले। तो लिहाजा उनको स्ट्रेंथन करने के लिए नए 6 जज साहिबान को सुप्रीम कोर्ट में इंडक्ट किया जाएगा और बुनियादी तौर पे अदालत को इस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। आने वाले दिनों में जो इंपॉर्टेंट मुकदमात होंगे उनमें बड़े बेंच बैठेंगे और फिर वो वाला जो हम ख्याल बेंच है वो प्रिवेल कर जाएगा जो काजी फाइज ईसा साहब के साथ होंगे। एक सोच ये है। दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती है कि जनाब क्योंकि मुकदमात इतने ज्यादा हैं, 70,000 के करीब, जनाब 60,000 के करीब, कोई 55 कहता है, इतने हजारों मुकदमात इस वक्त पेंडिंग है, तो जरूरी है कि हम जजेस की तादाद को बढ़ाएं। पहले इन्होंने रिटायर्ड जज ये लेके आए, वो जो रिटायर्ड जज आए वो भी एक मखसूस आप देखते हैं तो वो भी एक, जिसे आप कहते हैं ना यहाँ पे मखसूस बेंच की बात होती है, वो भी बेंच के एक साइड पे थे। ये नहीं थे कि वो बेंच की दोनों साइडों से आए हों, वो भी बेंच के एक साइड से थे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तकरीबन 23 लाख के करीब जो है मुकदमात पेंडिंग हैं और उन 23 लाख में 18 लाख से ज्यादा मुकदमात जो है वो ज़िलई अदालतों में पेंडिंग है। सबसे कम मुकदमात पेंडिंग पाकिस्तान में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है।
اور لیکن حکومت کی ساری توجہ سپریم کورٹ میں ہے. کیا ضلعی عدالتوں میں یہ کوئی جج لے کے آ رہے ہیں؟ کیا وہاں پہ کوئی ریفارمز کی یہ بات کر رہے ہیں؟ تو مسئلہ پھر مقدمات کے پینڈنگ ہونے کا تو نہیں ہے نا، زیر التوا مقدمات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سیاست سے جڑا ہوا مسئلہ ہے. اور اس وجہ سے حکومت چاہتی ہے کہ ایسے جج صاحبان آئیں جن سے ان کو یہ امید ہوگی کہ شاید وہ ان کے فیور میں کوئی فیصلہ دیں. ویسے تو جتنے بھی معزز جج صاحبان ہیں جب وہ کرسی پہ بیٹھتے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور بہت دفعہ پھر لوگوں کو سرپرائز بھی ملتا ہے.